I guess, ma'am, we are good to go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is 𝗦𝗂𝗵𝗵𝗃, Secretary Events for Law Student Council and your host for today. I welcome you all on the behalf of Law Student Council to this webinar on a very crucial and much needed topic, that is maximizing law school by unlocking productivity and strategic 5-year planning. I believe today's webinar is significant not only for the current law students, but also for those who are thinking of joining law school in near future. In this webinar, our esteemed guest speaker will share her strategies and expertise on maximizing law school success. And by the end of this session, I'm sure you all will have abundant knowledge and tips to excel in law school. For this discussion, our esteemed guest is Ms. Fer Ghanaa Ansari, to whom we are thankful for giving us her precious time. Thank you, ma'am. Ms. Fer Ghanaa Ansari is a distinguished human rights lawyer and advocate for gender equality, child rights, and Muslim family law reform. Ms. Fer Ghanaa Ansari has completed her BA LLB from 𝗙𝗏𝗻 University with the highest CGPA in her batch. She has also completed her master's in English literature from University of Punjab. Adding to her accomplishments, she also went to fully funded semester exchange through Global U-Grade program. She is currently working as International Advocacy Program Officer at 𝗦𝗂𝗵𝗃𝗲. Previously, she has worked as Research Society of International Law as Research Associate. Thank you, ma'am, for giving us your time. We are truly honored to have you with us. Thank you so much. I'm happy to be here. Yes. So, ma'am, for starters, in order to develop the foundation of the topic, my first question to you is, what do strategic planning and productivity mean to a law student, and how can strategic planning help you as a law student? Acha, isme there are two specific things that you've mentioned, right? Strategic planning and productivity. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ऑफ कोर्स वही मतलब है जो इसमें है, इस लफ्ज़ में है, और उसका यही मतलब है कि आप you really look, when you're in law school, you really keep thinking about throughout your law school journey, you keep thinking about what you want to do in the future, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, आपकी आगे आपने अगर LL.M करना है, आपने PhD SJD करना है, क्या करना है, या फिर आपने किस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी प्रैक्टिस तो डेवलपमेंट सेक्टर में आना है, पॉलिसी साइड पे आना है, ये सारे सवाल आपके कंटिन्यूअसली थ्रू आउट फ्रॉम डे वन ऑफ योर लॉ स्कूल आपको होने चाहिए. फर्स्टली ऑफ कोर्स व्हेन यू जॉइन अ लॉ स्कूल आपको नहीं पता होता कि क्या क्या एवेन्यूज हैं, लेट्स से कि किस तरफ आप जा सकते हैं, तो उसके अंदर ये प्लान करना कि आपको कि आपने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, और उसके हिसाब से फिर ये सोचना कि व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू मेक श्योर कि मैं इस करियर ट्रैजेक्टरी पे जा रहा हूँ. तो ये सारी बातें सोचना है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और इसके अंदर स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ भी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इसलिए होता है क्योंकि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू ऑल ऑफ द इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ द जॉब्स एंड ऑल ऑफ द फील्ड्स. आप सब कुछ नहीं कर सकते, वी आर लिमिटेड बाय आवर ह्यूमन कैपेसिटी, राइट? तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यही होगी कि इफ़ यू find that something interests you more, if you find that this is something that you really prioritize, तो जब आप वो prioritize करेंगे तो उसी के हिसाब से आप ये भी सोचेंगे कि अब मैंने उसके हिसाब से क्या चीज़ करनी है, what are the steps I have to take to do this and to get this specific thing. तो उसमें strategic planning में ये होता है कि आपको ये पता हो कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सी वाली चीज़ें pick and choose करके आप करें जिससे आपके chances बढ़ेंगे कि you are able to go on the paths that you want to go on. Having said that, productivity again is, whenever you are doing a task, you're doing it really well. And secondly, you're taking the initiative on your own to do these things. चाहे वो law school में academically excel करना हो, चाहे वो उसके outside of that internships करना हो, चाहे वो उसके अलावा कोई चीज़ competitions हो, moot court competitions हो, anything that you do, एक तो आपके अंदर एक initiative होना चाहिए जो कि I do see missing, at least when I was in law school I saw it missing in a lot of students, was this initiative and desire to be doing more than just studying in the classroom, right? तो उसकी productivity होना and then being able to do that better. These are the two things that I think we are talking about today, and I'm happy to expand on that.
Yes, ma'am, that's most definitely it is. Since the road to success is closely connected to empowering skill set. So, can you please highlight what kind of a skill a law student should have, which will help them in becoming a successful law student and ultimately a successful lawyer, particularly talking about the research and drafting skills? Okay, thank you so much for that. I was going to say research and writing before you said it, so thank you for highlighting this for me. Lekin overall, I'll just start generally about skills that you should have when you're in law school. और ये बातें अगेन मतलब सबसे पहले तो क्योंकि किसी को नहीं अंदाज़ा होता कि किस तरह लेके चलना है, क्या सोच के पहले से जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेप ऑफ डूइंग दीज डिस्कशंस इज रियली ग्रेट, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लॉ स्टूडेंट्स को. दूसरा ये कि स्किल्स जो है ना, वेन एवर यू जॉइन अ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चाहे वो लॉ स्कूल हो चाहे वो कोई और स्कूल हो, देर आर सम स्किल्स दैट यू विल एब्सोल्युटली नीड टू हैव, क्योंकि वो हर फील्ड में ही ज़रूरी हैं. उनमें बहुत बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स हैं, जैसे कि ओवरऑल राइटिंग स्किल्स हैं. ये सारी स्किल्स ज़्यादातर डिसिप्लिन्स में यूज़ होती हैं. लॉ स्कूल में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लाइक यू मेंशन, रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स है. और ये मुझे खुद लॉ स्कूल में होते हुए भी एक्सपीरियंस मेरा यही था कि इसमें जो स्ट्रांग होता था वो फिर हर कोर्स को भी एक्सेल कर लेता था, वो हर मूट कोर्ट कंपटीशन में भी एक्सेल कर लेता था, वो हर जगह आगे निकलता था. और वो इस तरह क्यों होता है? क्योंकि यू नो when you're able to do your own research and you don't have to be dependent on someone else to do that for you, तो उससे बहुत ज़्यादा आपका अपना फ़ायदा होता है. इसके अंदर रिसर्च स्किल्स में एक चीज़ मैं अगर कहूँ तो वो एक तो ये है कि when you think about research, don't just limit yourself to what the laws are, right? आप हमेशा उसके अलावा पूरा कंटेक्चुअली उस चीज़ को देखें, उसके अंदर नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट द लॉज, बट व्हाट द केस लॉ इज. अगर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लॉ पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो आपको आइंदा सुपीरियर कोर्ट्स में जब आप जाके एडजुडिकेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं. उसके अंदर सिर्फ ये काम नहीं आता कि आपने उस स्पेसिफिक लॉ पे अपने कोर्ट की और वही स्पेसिफिक जजमेंट्स निकाल लिया, आपने कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लिया होता है, वो भी बहुत जगह हेल्प हो जाती है उसकी. तो लुक एट व्हाट अदर जुरिस्डिक्शंस आर डूइंग. एक होलिस्टिक व्यू जब आपको किसी चीज़ का मिलेगा तो ऑफ कोर्स आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. इस ये हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स फॉर एवरी रिसर्च दैट यू आर डूइंग आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, फॉर एवरी असाइनमेंट दैट यू आर डूइंग आपके पास इतना टाइम नहीं होगा. तो उसके अंदर द सेकंड थिंग दैट आई हैव टू से इज क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी एंड प्रिसिजन इन योर राइटिंग, एंड दिस इज व्हेन आई विल कम टू रिसर्च एंड राइटिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स. जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो ज़रूरी ये नहीं होता कि कॉमा किधर लगाना है या लाइन किधर, वो सब चीज़ें हैं लॉ में बहुत उनको अहमियत भी दी जाती है. लेकिन what really elevates you as a lawyer when you're writing something, be it a draft, a legal draft, a plaint, whatever, or be it any other research piece of writing, चाहे वो रिपोर्ट हो जो आगे नॉन प्रॉफिट्स के लिए आप लिख रहे हैं, आप अगर उसमें क्लियर नहीं होंगे कि आप एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं, आप थोड़ी सी वेग बात कर देंगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी. उसी तरह द मोर वर्ड्स यू राइट, आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ लेस वर्ड्स मोर इम्पैक्ट. आप जितना कम लिखें लेकिन जितना साफ साफ बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. आपको फ्लावरी लैंग्वेज ऐड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. आई सी इट हैपनिंग अ लॉट इन in courts as well, not just in law schools but especially in law schools के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो हम बड़े बड़े लफ्ज़ लिखेंगे, उसमें ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखेंगे जैसे हम टीचर परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया है. लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात लिखेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई प्रैक्टिस थ्रू आउट माई लॉ स्कूल करियर, लॉ स्कूल एंड करियर, कि जितना आप कम लिखेंगे, जितना क्लैरिटी से लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें लेकिन उससे समझ आ रही हो कि बात क्या कर रहे हैं. क्योंकि अगर पढ़ने वाले को, स्पेशली इफ आई एम अ रीडर एंड आई एम लुकिंग एट एग्जाम्स, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू रिटन, तो आपने चाहे 1000 लफ्ज़ भी लिखे हों तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो ये रिसर्च और राइटिंग स्किल्स में डिटेल्स में जब आप जाएं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. एक लास्ट चीज़ है लैंग्वेज, जिसका बैरियर भी है एक हमारे सोसाइटी में, ऑफ कोर्स, एंड अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों है, लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत कोशिश भी शायद आउट ऑफ दिस हेट फॉर द फैक्ट कि हमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें लिखनी पड़ी हैं, उसकी वजह से हम सीखना भी नहीं चाह रहे होते कि हमें क्यों ज़रूरत है ये सब करने की. है ज़रूरत और अब करनी पड़ेगी, तो इसलिए इट्स गुड टू हैव
to do your research on how you can improve them. और उसके अंदर भी I can go into endless detail on how to improve it, लेकिन generally start looking at maybe YouTube videos. आपको हजार चीज़ें, resources आजकल कमी नहीं है, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी where you can really see how you can write something and improve your language skills, not just in terms of improving it generally कि आपकी English improve हो जाए, या लेकिन स्पेसिफिकली आपने जो प्लेन ड्राफ्ट करनी है या आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है, उसके लिए भी छोटी छोटी स्पेसिफिक टिप्स भी आपको मिलेंगी, जो कि शायद इतनी वो ना हो, मुश्किल ना हो सीखना कि ओ ये हम कैसे सीखें इसको। बहुत छोटी छोटी इमीडिएट टिप्स आपको मिल सकती हैं जिससे आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है राइटिंग में। तो ये दो चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा लाइक आई मेंशन कम्युनिकेशन, उसमें इफ़ यू आर नॉट एबल टू से समथिंग दैट यू वांट टू से वेरी क्लियरली अगेन एंड सेकेंडली विद प्रिसिजन, तो उसमें भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये सारे स्किल्स अगेन बहुत ज़रूरी होते हैं, रिसर्च एंड राइटिंग ऑन द टॉप। Okay, ma'am. So that was very detailed and insightful response from you. I'm sure बहुत सारी queries जो हैं वो इधर ही clear हो गई होंगी. So moving on towards the next question, it is about networking. How important is it for a law student to learn the art of networking? Okay, thank you for this question. Ever since I've been in law school, I have to be very honest, मुझे networking बहुत 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 difficult लगती थी, और हमेशा मुझे एक daunting सी चीज़ लगती है, डर लगता है कि ये क्या है, मुझे क्यों करनी पड़ी, annoy भी होती थी मैं। So I'm very honestly telling you कि ये मेरा पुराना experience रह चुका है, लेकिन अगेन टाइम के साथ साथ आपको पहली बात तो ये समझ आती है कि like you asked what is the importance of this, it has a lot of importance. It has more importance than maybe a lot of law students can imagine, because आप अभी अपनी professional life में maybe enter नहीं हुए। जब आप होंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी कि यहाँ पे जो भी चल रही हैं चीज़ें, उनमें a large part of it has to do with networking। ठीक है, नेटवर्किंग में क्या कि अगर किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, तो वहाँ पे अगर कोई था ऑलरेडी, वहाँ पे उसको अगर किसी का पता था कि ये दिस पर्सन, आई वर्क विद दिस पर्सन प्रीवियसली, या फिर मैंने इनको लॉ स्कूल में कहीं कुछ बोलते दे सुना था, या मेरे से आके उन्होंने बात की थी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट दे वर सेइंग, तो एक ऑलरेडी एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। नाउ थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिक्रूटर, ठीक है, थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन सिटिंग इन अ लॉ फर्म और इन द डेवलपमेंट सेक्टर। उनको उनके पास जब 50-60 एप्लीकेशंस आएंगी, बल्कि 50,000 भी आ जाती हैं कई बार, तो अगर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, उनमें ऑफ कोर्स आप भी अगर उनकी जगह होंगे, तो आपका अगर कॉलीग बैठा आपको बता रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, इनकी एप्लीकेशन भी आई है, आई वुड सजेस्ट कि इनको आप प्रेफर करें। तो जो रिक्रूटर भी होगा, जो डिसीजन मेकर्स होंगे, वो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वेटेज देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज़रूरी उसी को हायर कर लेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि योर एप्लीकेशन विल कम एट द टॉप ऑफ द पाइल, राइट। तो इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिकली, एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस अ लॉट बिकॉज ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। नाउ हाउ कैन यू नेटवर्क एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में फॉर एग्जांपल गए हैं, पहले तो प्लीज स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ योर लॉ स्कूल्स एंड स्टार्ट मीटिंग पीपल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह यू विल गेट कनेक्टेड टू पीपल हु आर पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। लेकिन वंस यू गो, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, एंड इट डजंट नीड टू बी अ वेरी फोर्स्ड कॉन्वर्जेशन, it doesn't need to be you selling yourself to them। अभी आप law students हैं, you can sell a few skill sets that you have, but अगर आपके पास बहुत ज़्यादा experience नहीं है outside of your internships, तो आप बहुत कुछ sell नहीं कर सकते अपने बारे में। लेकिन what you can do is get to know about their organizations, their law firms, what work they're doing। Whenever you're networking, मेरा तो अब ये rule of thumb बन गया, I ask more questions than I answer, and that gets you so much more information than you would ever want। And when people, because generally of course human beings love talking about themselves so what happens is when they're telling you about themselves, their interest in the conversation is piqued। ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट इन कॉन्वर्जेशन बढ़ेगा, उसके साथ साथ जब आप स्लिप इन कर देंगे अपनी कोई बात, एनी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर एग्जाम्पल दैट यू टुक अ पार्ट इन, जिसके अंदर आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम किया था और वो लॉ फर्म या वो
वो ऑर्गेनाइजेशन भी उसी पे काम करती है, तो आप वो एकदम से बात करते हैं उस बारे में। इस तरह का जब आप कुछ भी करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको फिर याद रहेगा। And then follow up again, the final tip that I can give for networking is people will forget. People meet in these conferences and all of these opportunities. People meet so many people at one time कि वो भूल जाते हैं. Try to get some form of contact, and in doing so make sure you don't cross any boundaries that they might be setting out. तो सबसे पहले इंस्टेंस में आप किसी से नंबर ना मांगें is usually my suggestion. Especially for women, it becomes a bit uncomfortable. मेरे साथ भी कभी कभार ये situations होती हैं कि मैं नहीं देना चाह रही होती अपना private phone number हर जगह, लेकिन थोड़ा सा issue इसका आ जाता है। तो what I always suggest is professional mode of contact, either LinkedIn होता है या email address होती है। The best one that I suggest to people is LinkedIn, because there everyone and every professional has put up their profile, which is what they want to put out. ठीक है, तो उसके अंदर आप कनेक्शन किसी से मिल के उसके बाद भेजेंगे, it will most likely be accepted. And then again, you know, very little tips like that. Send them a note when you're writing to them on LinkedIn. इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे नेटवर्किंग इतना बड़ा मसला नहीं लगता, right? You don't have to force it on the other person. You don't have to talk to all 500 people in one conference. You can only talk to, आप अपना टारगेट बना ले, मैंने सिर्फ 7 लोगों को 10 लोगों से बात करनी है, लेकिन अच्छी बात करनी है, डिटेल्ड बात करनी है। और जब मुझे लग रहा हो कि अच्छा यू नो मे बी they're not interested in the conversation, take your cue and leave. And that's not wrong. उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब आप माइंड में रखेंगे तो नेटवर्किंग आहिस्ता आहिस्ता बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस मैं फिर से अंडरस्कोर करूंगी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट लेटर ऑन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड जस्ट गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जब जितनी आपकी विजिबिलिटी होगी, आपको पता भी नहीं चलता, कहीं से आपको मैसेज आ जाता है कि अच्छा दिस थिंग हैज़ कम अप, कैन यू हेल्प, और कैन यू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और कैन यू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये आपकी they will follow you throughout. So network within your law school, अपनी teachers, अपने professors, all of them, अपने students, class fellows, सबके साथ, all of this friendship that you have, you're already doing the networking that you need. लेकिन outside of this, also try and do as much of it as possible. Thank you so much for shedding light on this important topic. I'm sure जिसने पहले networking नहीं भी की होगी, ये सुनने के बाद they'll start doing it now. So if you're in law school, you want to do everything. You want to say yes to every conference, every competition. So sometimes you don't have enough time. So my next question is regarding the time management. Can you please elaborate how one can win time management game in law school? Okay. Very good question again. Like I mentioned in the start as well, you're right. You cannot do everything. You cannot join every conference, every competition, and then also excel in academically, within your law schools. So usually what I say is, I know how important is the CGPA, how important is the law school grade, इस पे बहुत बात होती है, debates भी बहुत होती हैं। मेरा अपना personal view ये है कि importance उसकी है at the end of the day। चाहे हम there are so many ways in which you can give examples कि उसकी importance इस चीज़ में नहीं है। लॉ जब आप actually practice में जाते हैं तो इतना ज़्यादा कोई नहीं देखता आपका GPA, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन in some opportunities, if you want to target scholarships, for example, especially scholarships to do your masters, your PhDs abroad, उसके लिए आपकी academic excellence matter करेगी। ये नहीं ज़रूरी कि आपका सारी चीज़ों में 4 GPA हो ही हो। It can be normal, it can be fine, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन एक overall अच्छा वो होना ज़रूरी है। तो whenever you ask about time management and how many things you're doing at one time, प्रायोरिटीज अपनी खुद सेट करें, ठीक है। एंड वो भी किस तरह सेट होंगी, वो भी तब होंगी जब आपको अपनी रिसर्च की भी होगी और आपको पता होगा कि आपने क्या करना है आगे। इफ यू really are sure that you want to do an LLM, you don't know in which subject yet, sure, that's not a problem, but you know you want to do an LLM, then you really should be prioritizing कि आपका एकेडमिक एक्सेलेंस कम से कम हो उसमें, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स में ना हो, लेकिन आपने प्रायोरिटी उसको दी हुई है कि मैंने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं। कुछ लोगों का इस तरह होता है कि अच्छा मुझे ग्रेड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मुझे प्रैक्टिस का एक्चुअल जो चल रहा होता है प्रैक्टिस में, जो लोअर कोर्ट्स में जिस तरह फाइलिंग कैसे करनी है, वो सारा काम सीखना है। equally important if you want to join litigation and all of that. तो आपने फिर वो प्रायोरिटाइज करना है कि
इसमें मैं कहीं इंटर्नशिप कर लूँ या मैं किसी के साथ काम करूँ तो मुझे सीखने को मिल जाएगा। इस सब में अगेन वी गो बैक टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि आपने किसको चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसी के अंदर कॉन्फ्रेंसेज और मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर भी मैंने पर्सनली हमेशा ये देखा है कि whenever I've attended conferences that are जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, आज भी मैं गई हुई थी जिसमें लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आए हुए थे और वो सुन रहे थे बातें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द लॉ स्कूल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर हर कॉन्फ्रेंस में जाएं। कॉन्फ्रेंस का टॉपिक देखें, उसके अंदर आप ये देखें कि आर यू अवेयर ऑफ समथिंग अराउंड इट और नॉट, डज दिस इंटरेस्ट यू और नॉट। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वाटर ट्रीटी पे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपके बिल्कुल जहन में ना है और ना आप चाहते हैं कि कभी मैं इंटरनेशनल लॉ में, वाटर ट्रीटी में कभी कुछ देखूँ, आपका बिल्कुल पक्का प्लान है कि डोमेस्टिक लॉ में यूँ करना है, तो अगर बहुत फार फेच्ड कोई लिंक बन रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही लिंक नहीं बन रहा तो आप ना जाएं वहाँ पे, यूज़ योर टाइम बेटर एल्सवेयर। थर्डली लास्ट थिंग जो मैं कहूँगी वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ आपकी कंट्रीब्यूशन पर्सनल हो रही हो उसको प्रायोरिटाइज करें। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन्स, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स को मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, स्ट्रेस करती हूँ कि एवरी लॉ स्कूल शुड बी हेविली इन्वॉल्व इन ऑल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। उसमें अगर आप पार्ट ले सकते हैं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि उसके अंदर आपकी अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। कॉन्फ्रेंसेस में शायद इतनी ना हो, आप नॉलेज सुन लेंगे, अब्जॉर्ब शायद उनमें से 20-30% आप अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वहाँ होगी। I'm not sure if there is someone Yes, here या कोई I'm very connection sorry. issue है। I think she is having some internet issues, so I'll be Okay, covering for her. no problem. Yeah, please continue, ma'am. So the last thing that I was saying is कि अगर आपकी कॉन्फ्रेंस एक तरफ है, एक तरफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, एक तरफ इंटर्नशिप्स हैं और साथ फिर लॉ स्कूल भी है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ खुद बनाएं और उस हिसाब से डिसाइड करें। इफ़ यू वांट टू डू ऑल ऑफ देम, बिकॉज आई ऑल्सो डिड ऑल ऑफ देम, देन मेक श्योर कि आप उनमें उन्हीं चीज़ों के अंदर प्रायोरिटाइज करें कि अब मुझे ये वाली इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वाली नहीं है, ये वाला कॉन्फ्रेंस पे मुझे ज़रूर जाना है, इस वाले पे मुझे नहीं ज़रूरत, ना भी मिस भी करती तो ठीक है। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन कम अज़ कम पूरे लॉ स्कूल 5 साल के लॉ स्कूल 3 इयर्स के लॉ स्कूल में कम अज़ कम मैंने 2 या 3 मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में ज़रूर जाना है, लेकिन उसके बाद नहीं जाना। तो इस तरह की थोड़े बहुत प्लानिंग आप करते रहेंगे तो उससे आपकी टाइम बहुत अच्छा वेल मैनेज भी हो जाएगा और यू विल ऑल्सो गेट ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट यू वांटेड आउट ऑफ इट। Okay, thank you so much. The next question we have is कि जो first year होता है law school का, that is very important for students. तो उसको आप manage करने के लिए उसके लिए like how to get most out of your first year. What do you have to say about that? थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल में ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई केम इन वेरी अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है, और उसका मुझे नुकसान तो मैं नहीं कहूँगी हुआ है, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर, माय एक्सपीरियंस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। द रीज़न वाज कि इस तरह की द एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, इस तरह की कॉन्वर्जेशंस ओवरऑल ही इंटरनेट पे मिसिंग थी। एंड इट्स नॉट इवन टू लॉन्ग अगो, मैंने बहुत अरसा पहले नहीं शुरू किया था लॉ स्कूल, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नहीं अवेलेबल होती थी और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक्टिवली सीक आउट भी नहीं करते कि इस तरह की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Today, if you're a law student, if you're a first year law student today, then you are in luck. Trust me, you are in luck because there are so many resources at your disposal जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। हम देखते थे तो मुझे मतलब यूट्यूब पे थोड़ी बहुत और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की और ओवरऑल इंटरनेशनल लीगल फील्ड्स की इंफॉर्मेशन आ जाती थी, हमारी पर्सनल पाकिस्तान की बहुत कम मिलती थी। तो इस तरह की चीज़ सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, वॉच वीडियोज़ लाइक दीज। यू शुड रियली नो बिफोर गोइंग टू लॉ स्कूल एंड ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल कि व्हाट हैव आई साइंड अप फॉर, ये मेरा आगे इसमें क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या करियर हो सकता है।
you'd be surprised to know मुझे मतलब the non-profit sector and the development sector that I now work with internationally, इन सब avenues की मुझे awareness भी नहीं थी. मुझे first year law school में पता भी नहीं था कि that is also a path that can be taken by lawyers. मुझे बस पता था कि यहाँ practice, criminal, civil, corporate, high court, lower courts, you know, all of that. तो अब इस तरह की चीज़ों को आप recognize कर सकते हैं. Now you have a lot more resources at your disposal. तो सबसे पहले get that knowledge. And secondly, one very important thing in the first year of your law school is first year में आपको बहुत सारे basic concepts दिखाए जा रहे होंगे. उनको वो ना करें, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज एज यू ग्रो इन योर लॉ स्कूल जर्नी आप उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर आप you will be learning so much more in your future years, right? उन्हीं की बेसिक पे आप आएंगे वापस. हर दफ़ा जब भी कोई लॉजिकली आर्ग्यूमेंट आ रही होगी तो बहुत सारी चीज़ें will touch those very basics that you learned in the first year of your law school. So don't underestimate those. आप ये ना सोचें कि अच्छा अभी let's say if you have a 5-year law school, आप ये ना सोचें कि अच्छा अभी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर है, अभी तो हम ये वाले सिर्फ सिंपल वाले कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो अभी इनको वैसे ही ना देखो, असल तो वो होंगे. असल की बेसिस अभी बन रही है, ठीक है? तो रियली प्लेस योर इम्पोर्टेंस ऑन दोज. और उसके अलावा ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रॉड लॉ स्कूल का फेजेस क्या हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में मैंने क्या क्या पढ़ना है. और जितना आप ये सब लर्न करेंगे ना उतना आपको फर्स्ट ईयर में ही विजडम आएगा, वो वाला जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर तक आता है. मुझे भी बहुत लेट आया कि अच्छा मतलब ये वाला फील्ड के लिए ये वाले कोर्सेज इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल्स. तो थोड़ा सा इसमें मतलब जस्ट बी विजिलेंट अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड पिक ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट and don't take it lightly at all. The first year is I would say more important than your last year. Okay, so continuing with what you said, the last year. अब आप अगर ये बता दें कि जो लास्ट ईयर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे मैनेज करें, स्पेशली बिकॉज देर आर पीपल हु डोंट नो इफ दे शुड गो फॉर लाइक कचेरी और द फर्म्स. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Yes, so अब एक तो बात ये है कि I cannot conclusively talk about what is better, what is not. वैसे भी इसमें प्रोज कॉन्स हर किसी के लिए अपने होते हैं. मैंने तो वैसे भी लिटिगेशन ज्वाइन कुछ अरसे के लिए किया था. I practiced for a little while, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. तो I can't conclusively say कि क्या अच्छा है क्या नहीं है. लेकिन लास्ट ईयर के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगेन what I've been saying about आपको पता होनी चाहिए फील्ड्स क्या हैं क्या नहीं है. पता होने के बावजूद भी समझ नहीं आता कभी कभार कि अच्छा मेरे लिए क्या बेहतर है. तो उसके लिए भी अगेन यू हैव अ लॉट मोर रिसोर्सेज नाउ देन यू डिड बिफोर कि अच्छा क्या किस चीज़ के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर है. आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता आपके लिए क्या अच्छा होगा. when you're in your last year, तब तक hopefully you've spent a few summers of your life doing some internships in one place or the other. अगर वो internships आपने की हैं, कहीं jobs आपने की हैं और उससे आपको थोड़ी बहुत practical perspective मिला है, उससे आपको समझ आई है कि अच्छा कचहरी में ये मुश्किलात होती हैं लेकिन ये वाला बहुत ज़रूरी काम है, ये मैं सीख लूँगा, ये सब नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नॉन प्रॉफिट सेक्टर ज्वाइन किया है, वहाँ पे आपको समझ आई है कि रिसर्च और राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा पॉलिश हो रही हैं लेकिन मुझे लिटिगेशन और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा, तो ये इसका नुकसान है, ये इसका फ़ायदा है. All of that analysis is something you should really prioritize in your 5th year. Having said that, you don't need to have all the answers. You don't need to necessarily know that by the end of your final year, अब तो मैंने सारी ज़िंदगी ये करना है. People switch fields all the time and people also explore all the time. तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो, लेकिन आपका परसूट जारी रहना चाहिए, राइट? यू शुड रियली want to keep knowing कि अच्छा इसके ये भी मैंने ट्राई कर लिया, अब ये भी कर लिया है, अब किस तरफ डायरेक्शन जा रही है. कभी कभार उसके बाद भी समझ नहीं आ रही होती. स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ इन वन डायरेक्शन. थोड़ा सा एक जगह जाके और कोशिश करें, वहाँ प्रोग्रेस करें, और वो जब प्रोग्रेस करेंगे तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है या इसमें आ रहा है. तो लास्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल इज़ ऑल अबाउट दैट. सेकेंडली, आई डोंट नो आपके लॉ स्कूल्स में कितना करियर ऑफिसेज का कितना ज़्यादा वो है,
अवेलेबिलिटी है, लेकिन इफ़ देयर इज़ंट वन, और अगर आपने अपनी जॉब सर्च वगैरह खुद करनी है तो ये तो 4th ईयर से ही, नॉट जस्ट द लास्ट ईयर बट 4th ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर जो भी है आपका, उधर से ही आपको शुरू हो जाना चाहिए लुकिंग एट जॉब एस्पेक्ट्स ऑफ योर योर लॉ स्कूल जर्नी, एंड अब ख़त्म हो रही है तो उसके बाद आपने आगे क्या करना है, ठीक है। Oh, I see Mehak has joined us again. Hopefully you can hear me now. यस मैम, माई सिंसियर अपॉलॉजीज, मेरी तरफ कुछ इंटरनेट इशू था तो इस वजह से आई लेफ्ट. So moving on to the next question, it is about internships and it's the most highly discussed topic, I guess. So are law students required to pursue internships or should they focus solely on their studies? Okay, so on just focusing solely on your studies, my answer would be a big no. Don't do that. Don't just focus on your studies. It may, हर किसी को किसी चीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है, आपको शायद से फोकस स्टडीज़ पे करके फ़ायदा हो, लेकिन आजकल जिस तरह दुनिया पूरी चल रही है और जिस तरह पाकिस्तान में लीगल कम्युनिटी भी चल रही है, इंटर्नशिप्स आर इम्पॉर्टेंट. हाँ, थोड़ी इस पे हम बात कर सकते हैं कि इंटर्नशिप्स अनपेड होती हैं या बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं, उसके लिए you end up spending more just going to these offices and these कचहरियाँ और ये सब, और जितना आप खर्चा ज़्यादा लगा देते हैं मिलता कुछ भी नहीं है, ये सब नुकसान हैं. और इन पे भी I'm very against all of this and this exploitation of law students. लेकिन having said that, स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स को आई गेस ज़्यादा ज़रूरत है, उनको थोड़ी कम है, और हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. सैडली शायद यही बात है, क्योंकि अब अगर आप बिल्कुल, लेट्स से आप 2020 में ग्रेजुएट करें और 2020 तक आपका बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपकी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट ही 2020 में हो रही है. लेकिन जिसने 2017 में, 18 में पहली अपनी इंटर्नशिप कर ली थी, चाहे वो 1 महीने की किसी लॉ फर्म में थी या किसी रिसर्च सोसाइटी, लेट्स से व्हिचएवर जगह पे थी, वो अगर 1 महीने की भी इंटर्नशिप थी ना, तो वो उस वक्त व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग, दैट विल काउंट अ लॉट मोर, ठीक है. एंड अगेन, यू डोंट हैव टू प्रायोरिटाइज वन थिंग और द अदर. मैंने भी तो ऐसा तो नहीं किया कि मेरे ग्रेड्स रह गए हों या मेरा लॉ स्कूल एक्सपीरियंस कहीं रह गया हो और मैंने इंटर्नशिप्स को प्रायोरिटाइज किया हो. आपकी समर वेकेशंस हैं, वैसे भी उसमें कुछ ज़्यादा अगर नहीं हो रहा, 1 महीना तो आप लगा ही लो. अगर 2 महीने की छुट्टियाँ हैं तो 1 महीना एंजॉय कर लो, दूसरे महीने लगा लो. उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो पार्ट टाइम. अब आई डोंट नो आपके लॉ स्कूल्स में इस तरह होता है या नहीं. क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है, वहाँ पे पूरा एक सेमेस्टर में मैंडेटरी है इंटर्नशिप, विच इज़ आई थिंक अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव. उसकी वजह से भी हमने, what I did was the summer before that I interned at a law firm, फजले गनी, एंड उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया अपने पूरे सेमेस्टर में. और पूरे सेमेस्टर में जो मैंने कंटिन्यू किया, आई वॉजंट गोइंग ऑल द टाइम, आई वॉजंट फुल टाइम. मैं जाती थी हफ्ते में 2 बार, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द डेज वी हैड क्लासेस. लेकिन दैट कंटिन्यूइंग, एक तो कोलैबोरेशन, दैट हेल्प विद नेटवर्किंग. बहुत अच्छा नेटवर्क मेरा वहाँ से निकला कि वहाँ पे मैं प्रोफेशनल लोगों से मिली. दूसरा, वहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली सीखती रही. उनको मेरे से इतना फ़ायदा उस वक्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार जा रही थी. मैं एक्टिव ड्राफ्टिंग नहीं कर रही थी जो मैंने समर में की थी. मैं इतनी ज़्यादा उन्हें हेल्प नहीं कर रही थी. लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, जो मैं वहाँ जब भी हफ्ते में 2 बार जाती थी, तो मैं उनसे पूछती थी, अच्छा क्या पिछले पूरे हफ्ते में कौन से केसेस आए हैं, क्या क्या हुआ है, मैं वो पढ़ सकती हूँ या नहीं. वो मैं पढ़ती थी. उनमें अगर मुझे ऐसा लगता था किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे मैं रिसर्च कर सकती हूँ, वो मैं देखती थी. मैं खुद ही बाय माई ओन इनिशिएटिव रिसर्च करके उनको कुछ ना कुछ भेज देती थी कि अच्छा दिस माइट हेल्प, दिस माइट नॉट. और दूसरा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली दैट कंटिन्यूड फॉर अ गुड 9 months. तो इस तरह आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है. और अगेन, कनेक्टेड टू दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट पीपल ऑफन आस्क के लॉ स्कूल काफ़ी है, एजुकेशन काफ़ी है, या फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. तो इन टर्म्स ऑफ दैट, अगेन कनेक्टेड टू दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ स्कूल में आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी. किसी हद तक आपको प्रैक्टिस की बातें बताई जाएंगी, लेकिन आपको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, आपको बहुत सारी बातें उस तरह की नहीं समझ आएंगी. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हायर लेवल पे जब आप जाके लिटिगेशन भी
कुछ भी करते हैं, रिसर्च राइटिंग तो आप डेवलपमेंट सेक्टर में भी आके जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लॉ स्कूल ने बताई होती हैं जो आप जिसका आप बाद में शुक्र करेंगे कि शुक्र है ये मैंने सीखा था उस वक्त। तो ऐसा नहीं है कि थियरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो आपको इस तरह की चीज़ों में ज़रूर हेल्प करेगी। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल लॉ प्रैक्टिस तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री भी ऐसा है कि उसमें सिस्टम में कुछ और प्रैक्टिकली चल रहा होता है और थियरी में कुछ और लिखा होता है, तो जब व्हेन यू हैव टू मेक इट वर्क यू विल हैव टू लर्न बोथ। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इंटर्नशिप्स एज वेल। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग एक्चुअली प्रैक्टिस। तो वैसे तो आपने हाईलाइट कर दिया कि प्रैक्टिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज लर्निंग लॉ। तो वुड यू प्लीज़ हाईलाइट कि जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स को कब से करनी चाहिए, स्टार्ट एट देयर अर्ली सेमेस्टर्स या फिर एंड में? That really depends, I think, on your own journey, on what you're feeling at that point. क्योंकि मेरे लिए ये था कि मेरे लिए पर्सनली एटलीस्ट ये था कि मैं इतना फुलफिलिंग नहीं समझ रही थी अपने लॉ स्कूल एक्सपीरियंस को विद जस्ट एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अच्छा ये तो सब मैं सीख रही हूँ, क्लासेस में रूटीन में चल रहा है, मुझे कुछ और करना है। तो मैं बहुत अर्ली शुरू हो गई थी ये सब करना, और वो बहुत अर्ली उस वक्त के हिसाब से मतलब इट मेंट आई थिंक मैं सेकेंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल में ही मैंने अपनी पहला वर्क एक्सपीरियंस किया था। एंड उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक लिटिगेशन फर्म ही ज्वाइन करें या कुछ ऐसा ही स्पेसिफिक करें। आई वुड सजेस्ट ओवरऑल एज जस्ट students of any university and not just law students, just try to start your professional life as early as you can. उसके अंदर आपने अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अपने पहले साल के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको लॉ की कुछ समझ है और आप लॉ फर्म नहीं ज्वाइन कर सकते और आपको लग रहा है कि वहाँ पे आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, आप कोई और जगह ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको लगे कि शायद मैं सिर्फ एक अ फ्लाई ऑन द वॉल की तरह भी अगर हूँगा वहाँ पे तो मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो ऐसी किसी जगह पे आप ज्वाइन करें। और ऐसा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है टू get organizations to say yes to you or an internship for you if you're in your like let's say first year या second year, बिल्कुल शुरू के आप अगर years में हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है to get that entry, but if you still keep at it, आप किसी तरह अपने network को use करें again, और किसी तरह तरीके से आप कर सकते हैं तो उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और I would say start as early as possible, but if you really feel that you're not ready और एक पॉइंट आए जब आपको लगे कि अच्छा अब मुझे सीखने की ज़रूरत है, मैंने बहुत सारी थियरी सीख ली है लेकिन मुझे इसको प्रैक्टिस में सीखने की ज़रूरत है, तो आप उस वक्त ज्वाइन करें। there is no right or wrong answer to this, लेकिन I would say it's always good to overall just be starting your professional life as early as you can, और आपको नहीं पता होता उसका आपको सालों बाद भी फ़ायदा हो सकता है। Thank you so much, ma'am, for this insightful response. Moving to the next question, which is regarding the consistency. How do you stay to continue motivated and productive during your studies? Because most of students struggle with maintaining consistency, and I'm sure all the participants here can relate to this. Yes, of course. अच्छा, इसमें ना देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फेवर कर रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है कि अच्छा मुझे बिल्कुल ओवरऑल ही लॉ में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर तो होगा ऐसे कि अच्छा आप मतलब यू विल नॉट वांट टू बी कंसिस्टेंट या ये वो, या फिर इफ़ यू आर जस्ट नॉट wanting to work hard और आपका थोड़ा सा दिल है अच्छा अब मैंने रिलैक्स करना है, तो भी अब there are so many reasons for you not wanting to be consistent, लेकिन अगर ऐसे हो रहा है कि you're actively struggling with it, कि आप it's become too much, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पढ़ा सबके लिए नहीं जा रहा, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, तो उसमें अगेन सबसे पहले तो वही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन की बात आएगी। ठीक है, कि आपने देखना है कि अच्छा अगर 6 कोर्सेज हैं तो उनमें से अगर मुझे लग रहा है लेट्स फॉर एग्जांपल से इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में मैं इतना अच्छा नहीं करी बिकॉज आई पर्सनली यूज्ड टू स्ट्रगल विद इट क्वाइट अ बिट, तो अगर मैं उसमें अच्छा नहीं कर पा रही हूँ और मुझे मुश्किल लग रहा है तो ठीक है, आई विल स्पेंड अ लॉट मोर टाइम ऑन इट, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी कोर्सेज हैं जो कि आर कमिंग मोर ईजिली टू मी, तो उनमें तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूँ कि आई डू रियली वेल।
बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट और वो एक मुश्किल सा है, तो इनमें तो करना ही करना है। अच्छा, बाकी हम देख लेंगे, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम ऑलवेज विद दिस, ठीक है। दूसरा, कंसिस्टेंसी में हमेशा मुझे हमेशा यही लगता है कि आप अगर you don't have to, again it goes back to, you don't have to do a million things at one time, but the things that you pick and choose to do them well, ठीक है please. And this is something that I will really stress on, because I've seen this personally really impacting me positively. चाहे वो एक ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लग रहा हो कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होना है, मैंने क्या करना है इसका, मैं क्यों यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने क्या ये इस तरह, you get these feelings all the time whenever you are maybe attending conferences or something around that. आपको नहीं पता उसका आइंदा फ़ायदा कब होगा, और मैं ये इसलिए बार-बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे फ़ायदे हुए हैं जो बाद में मैंने सोचा है कि if I had not done a good job at that time, तो ये opportunity मेरे पास इस वक्त ना आई होती. And this is, for example, unrelated to law school. एक मैं example दे देती हूँ कि मैंने, like you mentioned, मैंने masters किया हुआ English literature में. That was in process and I hadn't done it. मैं साथ साथ law school के ही कर रही थी, लेकिन मैंने वो complete नहीं किया था. तो मैंने एक जगह पे वैसे ही मुझे मैं UGrad पे scholarship exchange program पे गई थी, तो मैं जब वहाँ से वापस आई तो I was invited to this one place कि वहाँ पे एक guest lecture deliver करते हैं आपके, यहाँ पे हम आप एक्सचेंज प्रोग्राम पे होके आई हैं, तो हम इन स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं एक्सचेंज का कि ये भी अप्लाई करें. अब वहाँ पे मैं गई, इफ़ आई वुड हैव जस्ट डन जनरल नॉट अ गुड जॉब, मैं प्रेपरेशन के साथ ना जाती, उनकी जो बातें उनको मैं सीरियस ना लेती कि बस एक लेक्चर ही तो है, कुछ भी नहीं है, अगर मैं इस तरह करती तो फिर वो इतनी आई वुडंट हैव डन अ गुड जॉब एट इट. लेकिन अगर क्योंकि मैंने दिल से किया, अच्छा किया, इवन दो मुझे बड़े साफ तरीके से पता था कि दिस इज़ नॉट माई फ्यूचर, मेरा लॉ स्कूल से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं वैसे ही कर रही हूँ ये, लेकिन इवन देन आई ट्राई टू डू अ गुड जॉब एट इट. एंड एट दैट टाइम आई वॉन्टेड समथिंग पार्ट टाइम which I could earn money out of. And क्योंकि मैं law school में थी और मैं चाह रही थी कि मैं साथ साथ I wanted to earn as well on the side. और वो उस एक गेस्ट लेक्चर की वजह से I was invited to become like a part-time instructor at their school. and वो उसका पूरा US Embassy से लिंक था, जिसका मुझे बहुत अरसे तक उसका मुझे रिटर्न फ़ायदा हर चीज़ में मिलता रहा. I got invited to so many places that had to eventually do with law as well. आपकी एसोसिएशंस जिस तरह बढ़ती हैं उस तरह आपको फ़ायदा होता है, ठीक है. तो इसलिए whatever you do a good job at it. It's okay if you can't do a million things, लेकिन जो करें दिल से करें और do a good job at it, and that will give you the motivation, because then you will see the return that's coming to you because of those things. Okay, ma'am, moving to my next question, which is regarding planning vacations. So how one should plan their vacations considering कि we have plenty of free time होता है students के पास. हाँ जी, फ्री टाइम तो बहुत होता है और वेकेशन भी हम बहुत करते हैं, तो इसलिए आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट नीड्स पॉइंटर्स फ्रॉम मी ऑन हाउ टू प्लान वेकेशंस. आपका you know yourself better. हाँ जी. Regarding the studies, के what kind of opportunities or internships we should look for? अच्छा, अगर if you want to do 2-in-1, which I have managed to do quite a few times, and that is maybe why you're asking me this as well, look for opportunities that can give you both. अगर कोई ऐसी फेलोशिप्स आई हुई हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ओ अच्छा, एक तो you will learn on the side, you will also be grasping a lot of knowledge, getting a lot of experience, लेकिन साथ साथ हम भूल बन जाएंगे एक हफ्ते के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि किसको नहीं अच्छी लगेगी, हम सबको अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है, मौसम अच्छा होता है, वेकेशन होती है, एंड साथ साथ आप सीख भी रहे होते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड थिंग. लेकिन अगेन इफ़ यू आर ओनली गोइंग टू अप्रोच इट फ्रॉम एन आइडिया ऑफ अच्छा मैंने सैर करने जाना है, तो उसमें मसला ये होगा कि आप दिल से वो अप्लाई नहीं करेंगे. Your heart will not be in the application, your mehnat will not be in the application, and that will reflect. And once that reflects on the people who are reading those applications, they won't accept you. And फिर आप नहीं जा सकेंगे. तो usually what I generally support, I'll just say this very quickly, is एक तो इस तरह की conferences होती हैं, seek them out, you'll find them. अब तो बहुत resources हैं आपके पास, आप लोगों से पूछें, वो करें, apply करें, सब कुछ करें. लेकिन अगर आप if you really need time off, then that is not your time off. ठीक है, उसको वेकेशन के तौर पे ना लें, वेकेशन अलग से प्लान करें. वो जो 2 महीनों की आपकी छुट्टियां हैं उनमें से 1 महीने अगर आप इंटर्नशिप करें, 1 महीने में कहीं और चले जाएं, कुछ करें आप इस तरह का. वेकेशन में वर्क मोड को बिल्कुल ऑफ कर दें ताकि यू गेट दैट मेंटल फ्रीडम टू जस्ट बी and to just enjoy life.
and that's good mentally for you as well. Okay, we're moving towards the next question. Since you have spent a lot of time abroad, studying abroad, so what kind of international opportunities should students avail themselves of during their studies, and what change it would bring them in their personalities? Okay, so firstly, I really would recommend that every person, no matter what you want to do in your future, चाहे आपने बहुत लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस आपका हो और आपका आइंदा फ्यूचर में भी यही इरादा हो कि आपने पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना है, an experience to study abroad or to visit in whatever manner, to go for conferences, बहुत 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 important है, even for your personal development as a person. जब diversity आपको नज़र आती है तो उससे you know your heart and mind opens up in so many ways. आपको you're able to talk to a number of different kinds of people, which is really a skill that you should have. Again, if you go back to skills in law school, that is a skill that you should have, being able to talk to a diverse group of people, be it someone from whichever part of Pakistan or be it someone from whichever part of the world. तो अगर आप में ये स्किल आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेशनली आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा उसकी वजह से. तो ये इसलिए ट्रैवल और ओवरऑल स्टडीइंग अब्रॉड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा ये कि आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है जो कि आप यूजुअली आप ना अवेल कर सकें पाकिस्तान में होते हुए. बिकॉज ऑफ कोर्स whenever you go, wherever you go, even if you meet someone from some other country which you are not from, जब आप उनसे बातें करेंगे आप एज अ फ्रेंड भी बात कर रहे होंगे, आप इस पर्सपेक्टिव से ये सोच के नहीं भी कर रहे होंगे कि ओ मैंने नेटवर्किंग करनी है या मैंने कुछ सीखना है इनसे, तब भी आपको बहुत सारी उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन, उनके लॉ, उनके हर चीज़ के बारे में आपको बातें पता चलेंगी that you wouldn't normally know. So that really helps even develop your personality as a person and then also in your professional life. On what you can do, on what opportunities you can avail, there are many. मेरे लिए हमेशा बैरियर ये होता था और मैंने अपने लिए एक सेट भी किया हुआ था स्टैंडर्ड कि मैंने फुली फंडेड ही स्कॉलरशिप्स पे जाना है, अदरवाइज आई कांट ट्रैवल एंड आई वोंट ट्रैवल, राइट. तो उसके अंदर मैंने फिर आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वुड कम अप. उसके अंदर किस तरह आपने लिस्ट बनानी है, बी पार्ट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स, बी पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स दैट टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स, बी पार्ट ऑफ एनी सच कॉन्वर्जेशंस. आजकल तो इस तरह की यूट्यूब पे भी भरी पड़ी हैं. इवन आई हैव डन अ whole session on Fulbright and doing the LL.M on the Fulbright. It's a very specific one on that. Go and watch it if you want to do the Fulbright and if you want to go on it. इसके अलावा जितनी scholarships हैं, Chevening है, Commonwealth है, Shared Commonwealth है, Fulbright है, Erasmus Mundus है, DAD scholarships हैं. There are so many and you'll find all of these lists if you just look it up. So it's easy to say just Google it, but honestly just Google it and you will find so many things that will be useful to you. इसके बाद लेकिन don't just let it go, make a list that is personally for you. आपके लिए क्या बेनिफिशियल है. अगर आप बहुत competitive scholarships पे जाना चाह रहे हैं तो you should also be aware कि वो competitive हैं. उसके लिए आपको आपका चाहे अगर ग्रेड अच्छा होना ज़रूरी नहीं भी है तो मीडियोकर कम से कम होना ज़रूरी है. उसके अलावा आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, बाकी एक्सपीरियंस, अगर आप final year of law school में हैं and if you feel that you're not that equipped to apply to all of these competitive ones but you might have some funding to support yourself और आप partial scholarship ले सकते हैं तो आप वो seek out करें. Or don't just think about scholarships after your law school ends. Just you mentioned, I went on a semester exchange called UGrad when I was in law school. UGrad is very famous at this point, so I'm sure काफ़ी सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा, look up global UGrad program. So it's a fully funded semester exchange program to go to the US. इस तरह की चीज़ें कभी कभार set you back. For example, इस तरह यूग्रैड पे जब मैं गई थी तो उसका एक सेमेस्टर बिकॉज द क्रेडिट्स वर नॉट ट्रांसफर टू माय यूनिवर्सिटी, तो मेरी थोड़ी सी डिग्री स्लाइटली डिले हो गई थी और उस डिले का मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं फिर भी चली गई. एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज्ड इट वाज सच अ बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, बिकॉज उसके अंदर जितना मेरे पास गैप था लॉ स्कूल का जिसमें मैं कुछ नहीं करी थी, उसमें मैंने वो वाली इंटर्नशिप्स की दैट लेड टू माई फ्यूचर जॉब्स एंड देन दोज लेड टू माई फ्यूचर scholarships and all of that. तो even if अगर आपका, मैं कहती हूँ, अगर आपका थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसकी वजह से, इन scholarships की वजह से,
तो भी आप जाएं। और उसके अलावा सीक आउट कॉन्फ्रेंसेस, मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस पे भी गई हुई हूँ ड्यूरिंग माई लॉ स्कूल टाइम, अब्रॉड, एंड ये सारी मुझे इसी तरह पता चलती थी कि मैंने बस आई वॉज पार्ट ऑफ स्पेसेस दैट हैड दिस इंफॉर्मेशन। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दो स्पेसेस, इफ यू डोंट एक्टिवली सीक देम आउट, आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपको कोई मैसेज करके नहीं बताएगा कि ये करना है, इस पे अप्लाई करो। और अगर कोई बता भी देगा तो उसके बाद दे विल नॉट फॉलो अप फॉर यू on it. So you really need to be your own person looking for these, actively looking for these. And that was the key difference I saw between myself and any peers who would wanted to go but were not able to seek out these. तो उनमें मुझे नज़र यही फ़र्क आता था कि मैं वो वाला इनिशिएटिव लेती थी कि मैं हर जगह पूछ रही होती थी कि अच्छा ये कैसा है, ये कैसा है, ग्रुप्स में हिस्सा होती थी. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स रियली डिपेंड ऑन अ लॉट ऑन यू एंड योर परसिस्टेंस कि अच्छा मैंने करना है तो मैं ढूंढ लूँगी. So it's really important, but it's your responsibility to seek these out. Okay, ma'am. Thank you so much for shedding light on this issue. ये मेरा last question होगा. Then we will move towards the question from the participants. So, how significant is it for a law student to find balance in their life between their studies, extracurricular activities, and obviously the personal life? Yes. So like I mentioned before, prioritize, make your own priorities. आपको अगर लगता है कि आपके एजुकेशन और ग्रेड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि किसी हद तक होते हैं, तो वो आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें. उसके बाद आप सोच लें कि अच्छा प्लानिंग में अच्छा इतना अरसा मैंने इसके लिए लगा लेना है, इतनी कॉन्फ्रेंसेस पे जाना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इन वाली पे जाना है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स इतने करने हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सारों पे जाने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह कर करके प्लान करें. और अगेन like you mentioned, work life balance, your personal life is also very 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 important. You have to spend time with your family, you have to spend time with your friends, और उससे आपका एक mental break भी मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिलता है. That is something that I was personally not very good at, and I've learned that with time. So if I have that advice to give to you, it is कि when you're disconnecting from work, from school, from all of that, fully disconnect करें. फिर उसके बाद बीच में उसको ना बार बार आने दें, ताकि आपको मेंटली बहुत एक अच्छी ब्रेक मिले, चाहे वो एक हफ्ते की हो, चाहे वो पूरे महीने की ना भी हो, लेकिन वो एक इतनी अच्छी ब्रेक हो कि उसके बाद आप रिफ्रेश होके वापस जाएंगे एंड यू विल हैव दैट रिन्यूड मोटिवेशन टू रियली गेट बैक इनटू योर वर्क. तो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रायोरिटाइजेशन. ऐसा नहीं है कि आप अपनी बिल्कुल लाइफ को ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो आपको मिल सकती है, बस आपको पिक एंड चूज अपने लिए खुद करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अबाउट. Can you hear me? I think you got disconnected. Yep, sorry, I think she's facing some internet issues. So we'll go to the questions we have in comments. Mm-hmm. Yeah. Okay, so the first question is, how does a law student develop resilience and cope with the high pressure demands of legal education and the legal profession? Okay, so about that, it is true that there are high pressure demands of the legal education. Again, this might seem repetitive, लेकिन if you really know कि आपने generally किस direction में जाना है, तो इट्स ईजी टू फिगर आउट कि अच्छा क्या मुझे नहीं करने की ज़रूरत, क्या मुझे करने की ज़रूरत है. दूसरा, ओवरऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑन वेयर यू स्टैंड within your law school development and within your own personal development. ठीक है, इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लास फेलोज आपसे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, या 2-3 क्लास फेलोज आपसे थोड़ा आगे जा रहे हैं, या उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जितनी आपको करनी पड़ती है, तो आप फिगर आउट करें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. इज़ इट अ लैंग्वेज बैरियर, इज़ इट अ राइटिंग स्किल, इज़ इट व्हाट स्पेसिफिकली इज़ इट, और फिर उस स्किल पे काम करें. ठीक है, फिर उसके बाद पहले उसको प्रायोरिटाइज करें, फिर बाकी चीज़ों को करें. तो इस तरह जो डिमांड्स होती हैं ना लॉ स्कूल्स की और आउटसाइड ऑफ दैट, वो इतनी डॉन्टिंग नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी वन स्टेप एट अ टाइम. एक तो आप लेके जा रहे हैं, और दूसरा आपको समझ आई हुई है कि दिस इज द वन वीकनेस और स्ट्रगल दैट आई हैव टू रियली काउंटर, और उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा. तो
it's really important to figure that out for yourself, and once you can do that, it's not very hard, to be honest. Especially in Pakistan, मुझे लीगल फील्ड इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं लगती, मतलब एटलीस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन वर्क आवर्स आपके लिए हैं ऐसे बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन का भी इशू है कि रात रात तक बिठाते हैं, बिला वजह बिठाते हैं, वो सारे मसले एक तरफ। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल इंटेलेक्चुअल रिसर्च या राइटिंग या स्किल डेवलपमेंट, उस सब में मुझे तो ऐसा लगता है देयर इज़ नॉट इनफ हैपनिंग। तो एज अपोज टू कि अच्छा बहुत ज़्यादा है लॉ स्कूल्स में, मुझे तो लगता है देयर इज़ नॉट इनफ focus on all of these things that really should be there. So once you figure out what you need to work on within yourself, so that process can be fairly easy. Okay, ma'am. Farishna Tawfiq has asked, is it really, it is a reality that some students choose this field because they couldn't do anything they wanted to do, which may be medical? Because I am one of those who couldn't get admission in medical school. In those circumstances, they don't have interest of studying law. So they just study law for the sake of getting degree. Hence, they cannot be productive as others who choose it. तो बेसिकली वो ये पूछना चाहिए मैम कि अगर डिफरेंट फील्ड से आए, आप लॉ आपकी प्रायोरिटी ना हो, इंटरेस्ट उस सूरत हाल में डेवलप नहीं होता, तो व्हाट वन शुड डू इन दैट सिचुएशन? और ऐसे बिल्कुल है, इट इज़ अ रियलिटी लाइक यू आस्क्ड कि मेडिकल से बहुत ज़्यादा ऐसे जो नहीं जा पाते मेडिकल में वो आ जाते हैं लॉ में, और फील्ड्स में जो नहीं जा पा रहे होते वो आ जाते हैं लॉ में। एंड दैट्स अ जनरल प्रॉब्लम विद द फील्ड एंड द प्रोफेशन कि उसको लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे एटलीस्ट। अब तो बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से भी आना शुरू हो गए हैं। आई पर्सनली वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड फ्रॉम बिफोर लॉ एज वेल। तो इन टर्म्स ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंस मेरे लिए भी था। आई डिड वांट टू डू लॉ, और वो भी आई वाजंट श्योर, आई वाज लाइक 50% ऑन इट व्हेन आई जॉइंड एज वेल। तो शुरू में मुझे भी स्ट्रगल हुई थी। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय नॉट वांटिंग टू बी प्रोडक्टिव विद इट, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ यूजफुल नहीं लग रहा। मैं तो साइंस की थी, तो मुझे तो ऐसा होता था कि अच्छा हम सब बातें क्यों करे जा रहे हैं, देयर थिंग्स लाइक दिस दैट यू थिंक एट दैट टाइम। बट देन मेरे लिए पर्सनली जो व्हाट वर्क वाज, मैंने ये सोचा कि अच्छा नाउ आई एम हियर एंड नाउ आई नीड टू एक्सेल, because I need to have a career, I need to really know what I have to do in the future. अब यहाँ आ भी गई हूँ और अब ये भी नहीं पता कि मैं अब इसमें क्या करूँगी आगे, और फिर मैं इस वजह से अच्छा भी ना करूँ तो उसमें नुकसान भी अपना ही करे जा रही हूँ मैं कंटिन्यूअस, राइट। तो ये वैसे तो कोई और आपको तो बार बार नहीं याद दिलाएगा कि नुकसान आपका अपना ही हो रहा है, लेकिन यू शुड रियली नो कि अब इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी प्रोडक्टिव तो उसका रीज़न क्या है। अगर मज़ा नहीं आ रहा काम में, तो या तो यू शुड रियली लाइक ट्राई टू रीथिंक वेदर यू वांट टू स्टे इन दिस फील्ड और नॉट, बिकॉज देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज ऑलवेज टाइम टू स्विच फील्ड्स। मैं हर किसी को कहती हूँ, ऐसा कोई आपको बांध के नहीं किसी ने रखा। इवन फ्रॉम विद इन लॉ यू कैन गो टू फील्ड्स दैट आर नॉट लॉ स्पेसिफिक। आप प्रैक्टिस लॉ ना करें, अगर डेवलपमेंट सेक्टर में आपको लगता है आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ आ जाएं। बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो कोई ऐसी फील्ड देखें दैट मे बी कनेक्ट्स लॉ एंड दिस बोथ, फोरेंसिक्स वाला देख लें साइड, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। दूसरा ये कि प्रोडक्टिविटी आपकी इसी तरह इम्पैक्ट होगी कि आपको अगर इफ़ यू रियली think about the fact that it's going to benefit you in the long run, और अब आप आ गए हैं और अब आपने excel करना है, तो it will give you that motivation. And once you start seeing the return of it, and honestly for me, I spent 3 years in law school, and that's when I really started understanding the importance of generally social sciences, and secondly overall कि अच्छा law की क्या importance है। So give it time as well. If you feel that there is space in your heart to give it time and you will see. और उसके साथ साथ मेहनत अपनी प्लीज कंटिन्यू करें, उस पे गिव अप ना ही करें। You're muted, I think. I can't hear you. Ma'am, Mohammed Zain has asked the importance of LinkedIn for law students. Okay, in the age of today, LinkedIn is important for everyone. Not having one might negatively impact you. Having one might not positively impact you, maybe, क्योंकि अगर आपने लेट्स से फील्ड में जाके आपने उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिनसे आप मिले भी पहले, और आपको नहीं ज़रूरत पड़ी लिंक्डइन, किसी ने आपका लिंक्डइन नहीं देखा और फिर भी आपको जॉब मिल गई,
तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसे हो सकता है कि आइंदा, स्पेशली व्हेन यू प्रोग्रेस इन योर फ्यूचर, तो कभी ऐसा हो सकता है कि यू रियली वांट टू जॉइन सम लॉ फर्म और सम ऑर्गेनाइजेशन, और वो बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही आपका दिल है वहाँ जाने का, और आप वहाँ अप्लाई भी करते हैं, एंड मे बी देयर द पीपल सिटिंग देयर look at LinkedIns of people. For example, when I look at profiles and when I look at people जो हम shortlist भी कर रहे होते हैं recruitment में से या जब भी, तो मैं तो हमेशा LinkedIn सर्च करती हूँ लोगों के, और मैं हमेशा देखती हूँ कि ये इनकी क्या है इस पे, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छी सेंस मिल जाती है of someone's law school journey and after that as well. तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंड करे ना किसी एक पर्सन या 2 पीपल के माइंडसेट पे या ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट पे, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रखें तो सही लिंक्डइन। इतना टाइम तो लगेगा नहीं, 1 दिन भी नहीं लगेगा बनाने में और उसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड करने में। हाँ ठीक है, उसको आपने कंटिन्यूसली एक्टिव रखना है या नहीं रखना, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन आप ओवरऑल उसको बना लें, उसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा हो सकता है। Okay, ma'am. 𝗙𝗵𝘃𝗲 has asked, is it worthy to set out your interest for some special area like civil during law school, and how much we have to take interest in that specific area? अच्छा, so like I mentioned, you should have the pursuit of this knowledge in your mind. आपको ये होना चाहिए कि अच्छा मुझे eventually I want to know कि मैंने क्या करना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन आप लॉ स्कूल में आए और आपको पता हो कि मुझे तो सिविल लॉ करना है। उस दिन तो आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क भी नहीं पता, तो इट्स ओके, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने अभी भी लॉ स्कूल ज्वाइन किया। थ्रू आउट द ईयर्स आपका ये माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि अच्छा मुझे क्या करना, मेरे दिल किधर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिस परसूट शुड ऑलवेज एग्जिस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पक्का आंसर आखिरी दिन तक भी हो। मेरे पास ये आंसर LLM के बाद आया है, बल्कि अभी भी यू कैन नॉट से कंक्लूसिवली कि अब मैंने सारी उम्र ये कर रही हूँ तो यही करना है, लेकिन दैट परसूट शुड ऑलवेज बी देयर। और उससे फिर आपने स्ट्रेटेजिकली ये भी सोचना है कि मेरे करियर पे किस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा, किस चीज़ का नहीं आएगा। तो या So, ma'am, these were the questions from participants. Thank you so much for sharing your valuable insight and guiding us on this very important topic. I'm really grateful कि आपने हमें time दिया from your busy schedule. If you would like to add any concluding remarks, please do the honors. No, thank you so much for having me, and good luck to you and all of the students that are listening to this, will listen to this. Just keep in mind, again, 1 or 2 pointers that I've stated. Prioritize what you want to do and figure that out. और दूसरा ये कि मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी उस पर ज़रूर do a good job at it, and it will benefit you in more ways than one. So these are just 2 pieces of final advice that I will give out, and good luck in your law school journeys. And of course, feel free to reach out on LinkedIn if you have any questions, any follow-up comments. So LinkedIn pe please feel free to contact me. Thank you so much, ma'am, for your valuable advices. As for the participants, thank you all for joining this webinar. I'm sure you all have learned a lot today, and now you're ready to plan your remaining years if you haven't already, and continue your journey on the road to success. Stay connected to LSE because we have a lot more informative webinars coming your way. So this is 𝗦𝗃𝗻𝗃𝗲 signing off from the platform of Law Student Council. Stay connected, stay tuned. Allah Hafiz.